heard about fellowship. और आज हमने संगति के बारे में सुना है। I was thinking of fellowship in 1 John chapter 1. और मैं Apostle John. पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय में संगति के बारे में जो बताया है उसके बारे में सोच रहा था। Just think Apostle John at the age of 90, after living a Christian life of around maybe 60 years or 65 or 70 years, what is he writing? It's about fellowship. That's the important thing. और इस अध्याय को पढ़ने के बाद में मैं सोच रहा था कि प्रेरित यूहन्ना जो है 90 साल के उम्र में करीब से करीब 60, 65, 70 साल की मसीही ज़िंदगी के बाद में वो किस चीज़ के बारे में लिखता है, और वो है संगति। What was from the beginning, what we have heard and what we have seen with our eyes, what we have looked and touched with our hands concerning the word of life. पहला यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। And the life was manifested, and we have seen and testified and proclaimed to you the eternal life which was with the Father and was manifested to us. यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। For what we have seen and heard we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us. Indeed, our fellowship is with the Father and His Son Jesus Christ. जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। And these things we write so that our joy may be made complete. और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। See, what is his goal? He's saying our joy may be complete, and that's how, I mean, if we have fellowship with one another, first we have to have fellowship with the Father, set things right in our life, and have the first thing is to fellowship with the Father and the Son Jesus Christ. That's how joy can be complete. और यहाँ पे उस मूल उद्देश्य ये बताया कि हमारा आनंद जो है वो पूरा हो जाना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारे पिता के साथ का जो रिश्ता है, वो जो संगति है, उसे सुधारना है। जहाँ कहीं भी गलती हो, पाप हो, उसको निकाल कर हटाकर उसे सुधारना है। उसके बाद में उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ भी हमें संगति में बने रहना है। And he's clearly given all the examples about what hinders this fellowship, what breaks the fellowship with the Father. We heard brother share about loving one another, loving your brother, loving your sister. If you don't have a clear love, if there's hatred, the fellowship of the Father is lost. It's right here in chapter 1. और इसी पहले अध्याय में बहुत ही स्पष्ट रीति से ये भी बताते हैं कि किस तरह से उस परमेश्वर के साथ का वो जो संगति है वो कैसे टूट सकता है। और हमने पहले भी संदेशों से, मैसेज में से सुना है कि किस तरह से हमारा जो रिश्ता है भाइयों बहनों के साथ गलती करने की वजह से जैसे वो रिश्ता टूट जाता है, उसी तरह से संगति में भी ऐसे काम की वजह से वो संगति और वो रिश्ता जो है वो टूट जाता है। I don't have time to read all this, but I just quickly want to read some verses which have challenged me to take it seriously. If I want to have fellowship with God and the Father and the Lord Jesus Christ, I need to meditate on these verses. और बहुत समय नहीं है सारे वचनों को पढ़ने के लिए, लेकिन कई एक वचनों को ज़रूर मैं पढ़ना चाहूँगा जो हमें गंभीरता से लेना है, क्योंकि इसके ज़रिए से हम सीख सकते हैं कि किस तरह से पिता परमेश्वर के साथ और उनके पुत्र यीशु मसीह के साथ संगति में हम बने रहें। We are thinking about what John is thinking about what it really means to have fellowship with the Father, that he has handled and tasted, and he is enjoying at the age of 90 the joy that he was experiencing. How we can have that joy. और उसी आनंद के बारे में जो प्रेरित यूहन्ना यहाँ पे बताते हैं, हम उस आनंद के बारे में हम सीखना चाहते हैं कि किस तरह से उसने उसके 90 साल में इन सारे बातों को सीखा कि वो संगति में बने रहने की वजह से उसका आनंद जो है वो पूरा हो जाता है। Verse 9 it says that 1 John chapter 2:9, the one who says he is in the light and yet hates his brother is in darkness. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। If we hate someone, we are living in darkness. We know nothing about Lord Jesus Christ, His Calvary's work. We know nothing about fellowship, absolutely no clue if we are having hate
in our heart. और यदि हम किसी से नफरत करते हैं या हमारे दिल में द्वेष भरा हो तो हम यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, उस संगति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उस क्रूस के बारे में, उस कलवारी के ऊपर जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। Again he says that in chapter 3, he is giving these tests to test our fellowship with the Father, whether happening or no. और तीसरे अध्याय में भी संगति के बारे में फिर से वहाँ पे बताते हैं, और यहाँ पे हमारे लिए एक टेस्ट के समान है कि हम परख सके, देख सके कि क्या हम परमेश्वर पिता के साथ उस संगति में हैं या नहीं। By this the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. 1 John 3 verse 10. पहला यूहन्ना 3:10। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। See, we think that, yeah, I mean, I don't hate anybody. I am just, good to everyone, and I just, just treat everyone with the love of Christ, as if nothing is wrong with us. We might think that's what it means to love one another. और हम शायद ये सोच सकते हैं कि मैं तो किसी से नफ़रत नहीं करता, ना ही मेरे दिल में कुछ द्वेष है, मैं तो सभी के साथ ठीक से रहता हूँ। तो हमको लगता है कि यही सब है जो संगति में हमें बनाए रखने में मदद करेगा। I mean, if you're cold to someone, that's actually equivalent to hating that person. There's some kind of, something messy with you and him. That's why there is that coldness. So that's hating that person, equivalent to hating. अब हो सकता है कि किसी व्यक्ति से आप नफरत तो नहीं करते होंगे, लेकिन ये भी है कि आप उससे प्रेम भी नहीं करते हैं। तो आप शायद सोचते होंगे कि मैं तो कभी इससे नफरत नहीं करता, मेरे लिए इस व्यक्ति के लिए मेरे दिल में कोई भी ऐसा कोई भावना है ही नहीं, लेकिन इससे भी हम कह सकते हैं कि ये परमेश्वर के प्रेम में या उस व्यक्ति के साथ परमेश्वर के प्रेम में नहीं है। John doesn't say you have to be, just treat casually. You're cold, that's okay. He's saying that you have to love that brother if you want to have fellowship. और प्रेरित यूहन्ना ये नहीं कहता है कि तुम अपने प्रेम में ठंडे रहो तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पूरे दिल से उस भाई या बहन से तुमको प्रेम रखना है। He's not saying that, I mean, you're not hating, no? I mean, okay, you're not even talking to that person, or you're only cold. That doesn't matter. He's not giving us excuse to live such a life. और वो ये नहीं कह रहा है कि तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते तो ठीक है, कोई बात है, तुम उनसे बात नहीं करोगे तो चलेगा। जब तक आप उनसे नफरत नहीं करते तो आप उनसे शायद बात नहीं करेंगे तो ये बात ठीक है, ऐसा यूहन्ना नहीं कह रहा, लेकिन वो कहता है कि ज़रूरी है कि हम प्रेम में ठंडे नहीं पड़े, लेकिन परमेश्वर के उस प्रेम में बने रहें। I am not saying that I am perfect and I love everybody, but my goal is to love out of pure heart, make opportunity to love, to set things right, to humble myself, ask apology to the brother or sister or whoever, and then have that fellowship going. So that's what attempt we should make in our life. और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिद्ध हूँ, और लेकिन ज़रूरी है कि जहाँ पर हमें वो प्रेम नहीं है, सच्चे दिल से हमें प्रेम रखना है, ना कि सिर्फ बाहरी तौर से दिखावे के लिए और ठंडे मन से, ऐसा प्रेम नहीं, लेकिन जहाँ कहीं गलती हुआ हो तो जाकर हमें माफ़ी मांगना है, उस रिश्ते को सुधारना है और सच्चे दिल से उस प्रेम में हमें बने रहना है। I mean, it is easy to pray with the brother whom you don't love. One brother has said that you can pray with a brother whom you don't love. There's coldness, you can pray, but to laugh and joke and crack, to have good fun with him, it's difficult. That means there's some if you're not comfortable with someone to crack joke and have a good time, that means there is some coldness. You can pray with that person, but that's a test we have to judge ourselves. Am I able to also laugh and joke and crack jokes and be myself in his presence? If I'm not, then that's coldness. तो हमने जैसे पहले भी मैसेजेस में सुना है कि हमारे लिए एक परीक्षा के समान ये बात हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी व्यक्ति से जब प्रेम नहीं करते या नफरत करते तो हम शायद उसके साथ बैठकर प्रार्थना तो कर लेंगे, लेकिन उसी व्यक्ति के साथ क्या हम हंसी मजाक और खुले दिल से हम व्यवहार कर पाएंगे क्या? He also says that in verse 3:18, little children, let us not love with word or with tongue, but with deed and truth.
पहला यूहन्ना 3:18 में, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। Verse 16, he says that before that we know the love by this, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brethren. और उसके पहले का वचन 16वें वचन में, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। We know John 3:16. What is that? और यूहन्ना 3:16 को तो हम जानते हैं। John 3:16, anybody knows? Oh, I'm clueless. What? Anybody wants to say? God so loved the world, correct? That he gave his son, that whoever believes on him will not perish but have eternal life. But see 1 John 3:16 what it says. We have to give our lives. Now that Jesus has died, you have to give your lives, die for your brothers and sisters. Leave alone sharing something or giving something. He's telling you have to die. और जैसे यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी चीज़ को पहला यूहन्ना 3:16 में हमने देखा कि अब यीशु मसीह जो हमारे लिए मर चुका, जी उठा है, ज़रूरी है कि हम भी हमारे भाइयों के साथ एक दूसरे के लिए हमें प्राण देना ज़रूरी है। And these are all the tests that John gave. Why? He wanted to explain these things. Why? Because that your joy may be complete, that you might have fellowship with God and Father. You all will be in the same team. Then only your joy will be complete if you have that attitude. और इन सारे बातों के बारे में यूहन्ना बता रहा है, प्रेरित यूहन्ना यहाँ पर बता रहा है क्यों, ताकि हम इन सारे बातों का अनुभव लें। और ये भी क्यों, ताकि इसलिए ताकि हमारा आनंद जो है परमेश्वर में पूरा हो जाए। So that's my attitude should be right when I hear these things. I mean, I have to say that, Lord, I'm not perfect. Where I'm going to die, I'm very selfish in many things. Lord, help me. That should be my attitude. I want to have fellowship with you. और हमारा मनसा सही होना चाहिए, हमारा मनोवृत्ति ये होना चाहिए कि परमेश्वर मैं बिल्कुल सिद्ध नहीं हूँ, मैं तो कितना स्वार्थी हूँ, मुझसे ऐसा प्रेम में बने रहना बहुत मुश्किल होता है। परमेश्वर तू मेरी मदद कर, ऐसा एक मन हमारे अंदर होना चाहिए। So that's the goal of a Christian life, to love one another. If we have not taken this aspect of our life seriously, I don't know where we are heading, or what kind of Christian life we are living. We don't know where we are going. Just like John saying that we have to love brothers and sisters with deeds and in truth. So let's take it to heart and make an attitude, change attitude, and start meditating on this. और जैसे प्रेरित यूहन्ना कहता है कि हमें भाइयों और बहनों को क्रिया में और वचन में सच्चाई से हमें प्रेम करना है, और यदि इसे हम गंभीरता से नहीं ले पाते तो मैं ये सोच में पड़ता हूँ कि हमारा मसीह जीवन कौन सी दिशा में जा रहा है, मैं नहीं जानता। We are hearing about loving one another. और हमने एक दूसरे के साथ प्रीति रखने के बारे में देखा है। We have not called one another into God's family. God has called us into His family. और हमने एक दूसरे को परमेश्वर के परिवार में नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने खुद हमें उसके परिवार में बुलाया है। And we love God, we love one another. और जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तब एक दूसरे के साथ भी हम प्रेम कर सकते हैं। This is known as a family love. और इसको पारिवारिक प्रेम कहते हैं। The Apostle Paul told us the kindred spirit. और इसी बात को लेकर प्रेरित पौलुस कहता है कि एक मन वाला प्रेम। In Philippians chapter 2, फिलिपियों का दूसरा अध्याय, he told about Timothy. उसे तीमुथियुस के बारे में कहा। Said for verse 20 that I have no one else of kindred spirit who will genuinely be concerned for your welfare. और फिलिपियों का 2:20 में ऐसा लिखा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। So in the English word is known as kindred spirit. और अंग्रेजी में जैसे लिखा है कि मेरे समान का एक मन। We love our close family members. और हमारे परिवार के बहुत करीबी लोगों के साथ हम बहुत प्रेम करते हैं। We really think about them and want to do the best for them. और हम हमेशा उनके बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं और हर बात बहुत उत्तम से उत्तम उनके लिए करना चाहते हैं। And all God's children are our own family members. लेकिन परमेश्वर के सारे बच्चे जो है वो हमारे खुद के परिवार के लोग We should हैं। love them. हमें उनसे प्रेम करना है। Timothy was one person who loved
the Philippians so much. और तीमुथियुस ऐसा एक व्यक्ति था जो फिलिपियो कलीसिया के लोगों से बहुत प्रेम करता था। He was not selfish. वो स्वार्थी नहीं था। He had the same spirit like Jesus had. और जिस तरह की आत्मा यीशु मसीह के पास थी उसी की आत्मा तीमुथियुस के पास भी थी। He had the same concern with the apostle Paul had. और जिस तरह की चिंता और बोझ प्रेरित पौलुस को था वही बोझ तीमुथियुस को भी था। That's how the apostle Paul singled out Timothy is he's really genuinely interested about you. और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने खास तरह से तीमुथियुस के बारे में बताया और कहा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बारे में बहुत चिंता करता है। He'll go out of his way to help you. और वो सारी पूरी कोशिश लगाकर तुम्हारी मदद करने के लिए कोशिश करेगा। And that's why he recommended Timothy. और इसीलिए उन्होंने तीमुथियुस का नाम वहाँ पे बताया। Because Timothy had cleansed himself from all selfishness. और क्योंकि तीमुथियुस के मन में कोई स्वार्थ ही नहीं थी और वो सारी स्वार्थ अपने मन से उसने निकाल दिया था। We can all become like that. और हम भी सभी लोग उसके समान बन सकते हैं। And we can have a care and concern for the family of God. और परमेश्वर के उस परिवार के लिए हम भी एक बोझ लेकर रह सकते हैं। Once I was coming out from the station at Bombay Central. और एक बार बॉम्बे सेंट्रल के स्टेशन से मैं बाहर आ रहा था। And God spoke to me through some incident there. और वहाँ पर एक घटना जो घड़ी उसके जरिए से परमेश्वर ने मुझसे बातें की। One man had fainted. वहाँ पर एक आदमी जो है बेहोश हो गया। And there was a little crowd around them. तो वहाँ पर सामने आसपास में लोग भीड़ भाड़ जम गई। And the TC also was standing there. वहाँ पर टीसी भी खड़ा था। So I also was looking. तो मैं भी वहाँ पर देख रहा था। And suddenly I saw one young boy coming. तब मैंने देखा कि झट से एक छोटा लड़का वहाँ पर आया। And he's asking the TC. और वो छोटे लड़के ने टीसी से पूछा, क्या ये मारवाड़ी है? क्या मारवाड़ी है? Is this man a Marwadi? The TC लोग इसे मारवाड़ी जाने दो, ये तो इंसान है. Then the TC said that even if maybe whether he's a Marwadi or not, he's a human being. And I went back after that incident. फिर उस घटने के बाद मैं वहाँ से चला गया। The Lord spoke to me. तब परमेश्वर ने मुझसे बातें की। And I looked at this boy. उस लड़के की ओर तुम देखो। He doesn't know this man at all. उस लड़के को वो जो बेहोश हो गया व्यक्ति उसे वो नहीं जानता था। If he was a Marwadi, definitely he would have helped him. और यदि वो बेहोश हुआ व्यक्ति मारवाड़ी होता तो सच में वो छोटा लड़का उसका जरूर मदद करता। Then he said, the Lord spoke to me. Do you have a concern for your fellow Christians? और तब परमेश्वर ने मुझसे बातें की कि तुम्हारे साथ वाले परिवार परमेश्वर के परिवार के मसीह लोगों के लिए क्या तुम्हारे मन में बोझ है क्या? Look at that Marwadi chap. He was so willing to do anything to help him. और वो छोटे लड़के का मन को देखो, वो कैसे पूरी तरह से जोश में भरा था कि उस मारवाड़ी अगर वो व्यक्ति मारवाड़ी होता तो मदद करे। Anytime the Holy Spirit can speak to us the small incidents like this. और कई बार ऐसी छोटी-छोटी घटनाओं के जरिए से पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। We are so caught up with ourselves and our own families and all the things, our job, that we have very hardly think about other people, other Christians, or pray for them. और हम हमारे खुद के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारी नौकरी को लेकर कितने सारे बातों को लेकर हम चिंता में रहते हैं कि हमारे पास परमेश्वर के परिवार के लोगों के बारे में सोचने के लिए समय नहीं होता। The Lord will give us care and concern. लेकिन परमेश्वर हमारे दिल में वो बोझ और वो प्रेम देगा। And you start doing the small things. और जब हम छोटी-छोटी बातों को करना शुरू करते हैं, And the Lord will help you in future. तब आगे में परमेश्वर हमें मदद करेगा। I think in Titus it says that if anybody wants to become an elder or a bishop, he is a very good thing that he desires to do. और जैसे तीतुस में लिखा है कि यदि कोई एक व्यक्ति प्राचीन बनना चाहता है या बिशप बनना चाहता है तो उसने मन में बहुत अच्छी एक इच्छा रखी है। You want to become an elder or a pastor? या यदि आप पास्टर बनना चाहते हैं या एक प्राचीन बनना चाहते हैं, That is a very good thing. ये बहुत अच्छी बात है। Very good work. बहुत अच्छा काम है। Why is it a very good work? ये बहुत अच्छा काम क्यों है? Now that you can stand up and preach and stand in the front and do all these things. ताकि आप यहाँ पे खड़े हो और प्रचार करें और बहुत बड़ी-बड़ी काम को करें। You will have a lot of responsibility to care for others without any payment. ताकि आप दूसरों के लिए बोझ उठाकर उनके चिंता में आप बने रहे, वो भी बिना किसी पगार या वेतन को मिले। Brother Zach says all the elders who want to be elders should be the chief lavatory cleaners. और जैसे ब्रदर जैक ने कहा कि यदि जो कोई भी प्राचीन बनना चाहती है, मुख्य प्राचीन बनना चाहते, तो जरूरी है कि सबसे पहले वो जो है टॉयलेट बाथरूम का साफ करें। They should get all the insults. वो सारे निंदाओं को सहना है। They should be working patiently day in and day out. और रात और दिन बिना छूटे धीरज के साथ उन्हें काम लगातार करना है। Whether people praise them or curse them, फिर उनकी हम प्रशंसा करें या श्राप दें, quietly do the work for the Lord. वो लगातार शांत मन से परमेश्वर का काम लगातार
अनुसार करते रहेंगे। The closest that we see in that is the work of a mother. और इस काम को जब हम बहुत ही करीबी से एक दृष्टांत के तौर पर देखेंगे तो वो एक माँ का काम को देख सकते हैं। Children don't even bother to thank them. और बच्चे तो कई बार माँ को धन्यवाद कहना They भी नहीं भूल slog जाते। day in and day out. और माँ जो है रात और दिन वो काम करती रहती है And don't expect any honor and any thank you also. और उस काम के लिए वो बदले में कोई किसी से प्रशंसा या धन्यवाद की भी अपेक्षा नहीं करती। Jesus is like that. और इसी तरह से यीशु मसीह भी थे And he wants us to love one another. और वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, Thinking low thoughts about ourselves. अपने खुद के बारे में कम सोच रखकर Just serving one another. एक दूसरे की सेवा में लगे हुए। And that these are the people God will always use. और ऐसे लोगों की परमेश्वर जो है इस्तेमाल करेगा। Like Timothy, who had a genuine concern for the welfare of the others. और जिस तरह से तीमुथियुस को उसके दिल में एक सच्चा चिंता था कलीसिया के लोगों के बारे में, May we also have a genuine concern for the others. और हमारे मन में भी दूसरों के लिए एक सच्चा बोझ दिल में रहे, The same concern that Jesus had for us. और उसी बोझ जो यीशु मसीह को हमारे लिए था। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, thank you, Lord, for giving us Jesus. और धन्यवाद पिता कि आपने हमें यीशु मसीह को दे दिया। How much you loved us, Lord. आपने हमसे कितना प्रेम किया, In spite of all our mistakes and sins, Lord, you still borne with us. और हमारे सारे पापों की वजह से, हमारे सारे गलती के बावजूद आप हमारे साथ